Good morning, all of you. You are the students of BA 6th semester, and after few days, you have to go for compulsory English examination. So, some students they have asked me to organize a workshop so that they can know about the exact university question paper and they were desirous to know about the important questions also, the oft repeated questions in the examination. So I am sharing the screen now. We will go directly to the study material which is prepared by Board of Studies of our university, and many teachers they have contributed in it, and the study material, it is in very easy language. You know, all of you know very well, you have studied it. And how to revise your syllabus, I will give some tips to you about important questions and about the pattern. I am sharing the screen now. I hope you can see the screen now, and on the screen you will find, is it visible? You can write in the chat or give reactions. Is it visible? Let's see. This is the material, the study material, which I posted, I shared on WhatsApp group. And you know the title, Emanating Voices. And this study material is prepared by Board of Studies of Nagpur University. And you know very well that you have studied from it, and uh, the things are very easy. The notes are very easy in it. Um, and first of all, we will talk about the syllabus, and the bifurcation of syllabus. This is unit 1. This is um, just a minute. This is unit 1. It is of prose, and it has 4 lessons. You know, you have studied it after 20 years, the gold frame, the bet, and works bring solace. Then you have unit 2 of personalities, and 3 personalities are in the syllabus: Rahul Bajaj, G.R. Gopinath, and Sabir Bhatia. Unit 3, it is of poetry, Bengal Sailors by Sarojini Naidu, The Soldier, On His Blindness, and Invictus. And unit 4, it is on grammar and composition, and you know very well that you have to prepare the complete syllabus for the examination. You have prepared it, but you have to revise it for the examination. Now see the question pattern. Question pattern is very important because most of the students, they are confused at what kind of questions they will be asked in the examination. So remember, जो सबसे बड़ी एक गलती करते हैं स्टूडेंट, whenever they are writing the answers, they don't write the question number. सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, whenever you are answering any question, तो वो क्वेश्चन का नंबर लिखो. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन 1 नंबर 1 का ए है या बी है, क्योंकि 2 सेक्शंस है इसमें, ए और बी. इफ इट इज फ्रॉम ए, अगर वो ए से है तो क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखना है. और फिर ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, और ये किस पर आएंगे? यूनिट 1 प्रोज पर. तो पहले तो हमने बाइफर्केशन देख लिया यूनिट 1 का, उसमें प्रोज है, उसमें लेसन्स है, और ये 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको आंसर करना पड़ेंगे. 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे रहेगा विद इंटरनल चॉइस, मतलब इसमें 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 3 करना पड़ेगा. यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस. इट इज ऑन यूनिट 1. ये यूनिट 1 कौन सा था? यूनिट 1 है आफ्टर 20 years, द गोल्ड फ्रेम, द बेट, वर्क ब्रिंग सोलेस. ये यूनिट 1 है जो कि लेसन है, प्रोज है. इट इज ऑफ 15 मार्क्स. 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब होता है यू हैव टू राइट 5 to 6 sentences.
और 5 to 6 सेंटेंसेस लिखना मतलब एक छोटा सा आंसर लिखना होता है, उसी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहेंगे. सो प्रिपेयर ऑल दिस शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. और फिर क्वेश्चन 1 का जो बी है वो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं. ये जितने भी चारों जो लेसन्स पर जो एमसीक्यूज हैं पूरे, हर लेसन के बाद एमसीक्यू है और उसके आंसर्स है स्टडी मटेरियल में. उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. रिमेंबर वन थिंग कि एमसीक्यू अगर आपका करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. इसमें 5 मार्क्स है, इसमें चॉइस नहीं है, मगर 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 आंसर करना हो गया आपको. और अगर आपने लेसन्स के एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिए तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन यूनिट 1. अब जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो है सेम पैटर्न है. देयर आर यू हैव टू आंसर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो यूनिट 2 पर रहेगा, पर्सनालिटीज पर रहेगा. 5 या 6 उस पर क्वेश्चंस आएंगे, 3 उसमें से करने होंगे. एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. सो यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस. बी सेक्शन में इट इज वन एंड द सेम. एमसीक्यूज आएंगे यूनिट 2 पर, पर्सनालिटीज पर. वो 5 मार्क्स पर है. पूरे पर्सनालिटीज के एमसीक्यूज जो कि आंसर दिए हैं स्टडी मटेरियल में, ट्राई टू प्रिपेयर इट. क्वेश्चन नंबर 3 द सेम पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम पैटर्न है. यूनिट 3 का पोएट्री सेक्शन है और 5 मार्क्स ईच है, 15 मार्क्स है. और एमसीक्यूज भी है इस पर, पोएट्री पर. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर दीज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता ही है, पंक्चुएशन है 5 मार्क्स का. 1 वर्ड फॉर द थिंग, तो उस पे 5 मार्क्स है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल्स जो है ये हमने गूगल क्लासरूम में, ये स्टडी मटेरियल में नहीं है यूनिट 4, बट इट इज इन गूगल क्लासरूम. If you have joined the Google Classroom of our class, naturally you will get all the material in it. Question number 4, A, B, C, D. ये भी 20 marks का है. Now see the syllabus. For example, we are taking one example of the syllabus that see, this is the lesson after 20 years. What you have to do in the revision, if you are doing revision, how you have to revise? Revise the summary, read the summary carefully. और summary पढ़ते समय title of the story, writer of the story, main characters of the story, जो main characters है story के, जो main characters है story के, like Jimmy Wells, और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. जगह के नाम है, न्यूयॉर्क है फॉर एग्जाम्पल. ऐसे टाइप के जो डिटेल्स है, ऑल द डिटेल्स शुड बी मार्क्ड. ये सब डिटेल्स को अंडरलाइन करना है सो दैट यू कैन रिमेंबर द नेम्स. नाउ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि आपको 3 करना है. सिर्फ ये लेसन से नहीं, पूरे यूनिट से. यूनिट में जो चारों लेसन्स हैं, चारों लेसन्स के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उसमें से 3 करना है. 5 या 6 आएंगे, उसमें से 3 आपको सॉल्व करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन of this story is quite important, I think, that what are the impressions you get about the man from the west from after 20 years. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है. एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द समरी इन अ गुड वे, अगर समरी आपने अच्छे से तैयार कर ली है, इफ यू नो द स्टोरी, इफ यू नो द डिटेल्स, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन. आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ये पूरे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चंस दिए हैं. हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसको लिख कर देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो.
3-4 बार पढ़ने के बाद यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड इफ यू नो द समरी, अगर समझ के आपने पढ़ा है, सिर्फ याद नहीं किया, अगर उसको समझा भी है सही तरीके से, इफ यू नो द डिटेल्स, तो आपको वो याद रहेगा 2-3 बार पढ़ने के बाद आंसर, और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज जिमी वेल्स, डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर विद सुटेबल एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छे से प्रिपेयर करो समरी और ये 2 क्वेश्चंस। नाउ द एमसीक्यूज, ये पूरे एमसीक्यूज, इसको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुलिसमैन लुक लाइक, इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, ये क्वेश्चन 1 का बी करेक्ट है, तो इसको आपको मार्क करके रखना है, इसको याद करना है। सिमिलरली द अदर लेसन्स, जो भी दूसरे लेसन्स है, इसको ऐसे ही जैसे मैंने ये वाला पैटर्न बताया है, इसको प्रिपेयर करो। फिर इसके बाद आफ्टर दैट यू हैव यूनिट 2, यूनिट 2 का 2 है, और यूनिट 2 में आपको पता ही है कि पर्सनैलिटीज है। पर्सनैलिटीज में समरी को अच्छे से पढ़ो, पूरी डिटेल्स को अंडरलाइन करो। जैसे ये राहुल बजाज हैं, रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, और बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वो लीडर हैं। और ये सब चीज़ें पूरी डिटेल्स, कौन से कॉलेज में उनकी स्टडी हुई, कौन से ईयर में उन्होंने पढ़ाई की, कंप्लीट की, कैसे अवार्ड मिले, कौन से अवार्ड मिले, कौन से ईयर में मिले, और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस उसके। हाउ डिड राहुल राहुल बजाज प्रिपेयर हिमसेल्फ टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस, ये क्वेश्चंस हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो 2-3 बार, समरी अच्छे से पढ़ो, और लिख कर देखो। लिख कर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिख के देखते हैं तो आपको डिफिकल्टीज पता चलती है, स्पेलिंग्स की गलतियां पता चलती है, एंड इफ यू विल प्रैक्टिस राइटिंग नेचुरली यू कैन स्कोर गुड। ये एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में देखो बोल्ड लेटर्स में इसके आंसर्स हैं, इसको टिक मार्क करो, और इसी तरीके से पर्सनैलिटीज को पूरा करना है। देन यू हैव पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन है आपका, और पोएट्री सेक्शन में बैंगल सेलर्स हैं सरोजनी नायडू के। फॉर पोएट्री सेक्शन इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर पोएट्री। समरी प्रिपेयर करो, पूरे अच्छे से पूरे उसको मार्क करो। समरी प्रिपेयर किया तो हर पैराग्राफ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हर स्टांजा पे एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है, और यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चंस आर देयर। ये जैसे ये सेकंड क्वेश्चंस है, सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंगल्स दैट द सेलर्स कैरी, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है। हु इज द स्पीकर एंड व्हाट यू कैन से अबाउट द स्पीकर आफ्टर रीडिंग द पोएम, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो समरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी समरी अच्छे से तैयार करो पोएम्स की। और पूरे एमसीक्यूज, रिमेंबर टू प्रिपेयर एमसीक्यूज। जित एमसीक्यूज अगर हम टोटल मार्क्स देखेंगे तो करीब 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं सिलेबस में। अगर ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो यू विल गेट 15 मार्क्स इन इट, और 15 मार्क्स एक सॉलिड मार्क्स होता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। सो रिमेंबर टू प्रिपेयर ऑल these एमसीक्यूज, ऑल these एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर्स भी दिए हैं, मार्क करके रखो, समझ के उसको पढ़ो, याद करो तो आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर पोएम की समरी पढ़ना है, और समरी बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। लाइक दिस वन, हाउ कैन अ फॉरेन लैंड बी अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, explain the words and phrases used in the poem which tell us that
द पोएट इज पैट्रियोटिक, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लग रहा है। देन MCQs आर इम्पोर्टेंट, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर समरी तो इम्पोर्टेंट है ही। ये वाला जो क्वेश्चन है थीम बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर। थीम है वही समरी है, आप पूरी समरी लिख सकते हैं इसमें पोएम में, थोड़े ब्रीफ में, शॉर्ट में। देन यू हैव अनदर पोएम इनविक्टस, ये टाइटल का मीनिंग क्या है, समरी क्या है इसकी, और थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है, इलेबोरेट ऑन व्हाट द स्पीकर इज थैंकफुल फॉर इन द पोएम इनविक्टस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। एंड रिगार्डिंग ये तो हुआ लास्ट पोएम, लगभग लास्ट पोएम है ये। और ये जो यूनिट 4 है, जो आपने सिलेबस में स्टार्टिंग में देखा था, विच इज ऑन ग्रामर, जो कि ग्रामर पर है, ग्रामर एंड कंपोजिशन पर। पंक्चुएशन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट्स। ये मैंने गूगल क्लासरूम में आई हैव शेयर्ड सम सैम्पल sample or exercises in it. So go through it, you will find it very easy to prepare. So this is the thing. If you have any question, I am stopping sharing here. If you have any question, you can ask me. Welcome, Mr. Vasikar. I have started the workshop because we were getting late, and I hope you have given all the things related to syllabus to the students, and I have also done justice to the question pattern and in the matter of explanation about the question pattern and the syllabus and important questions. So if you have any question, you can ask me. Any questions, Kalpana, Sachi? Do you have any question? You can write in the chat, or you can give reaction like this. You can raise hand. When you want to say something, you have to raise hand. You should know all the features of this Zoom. So any question? Okay, then I think there are no questions. If there are any questions, you can write in queries. You can write on my number, WhatsApp number, and I will try to answer it. So I think you have got an idea about the question pattern and the important questions. Thank you very much for this session, for this workshop. You will find the recording on our YouTube channel.